Now we start with the probability. It is a part of our statistics. Probability. Probability. Directly starting with the problems. But the problems are generally on coin, die, and playing cards. There are three types of problems on these three things: coin, die, and playing cards. 2 coins, 1 coin, 3 coins tossed. A die is thrown. The die, well-known die that we use in, and the playing cards, that 52 playing cards without joker. So you must know all the information regarding all the things: coin, die, and playing cards. I think you all of you familiar with these things. But if you have any doubt, you can ask me at the same time of problem. Now here, before this, we have a sample space and event. These are the two things needed. Sample space, and the event, and some formulae. How to find the probability of an event. Probability of an event is always equals to number of outcomes favorable to the event divided by number of sample points. That we call N of A upon N of S. This was our shortcut way. This is our formula of finding number of element in A divided by number of element in the sample space. So while finding the probability, let us consider example. The example, very simple example. When you find the probability, less time is we have within 40 minutes you have to cover more questions. So come to a point, a coin is tossed. Now what is the sample space? Coin is tossed, possible outcomes. It may occur head on the uppermost face of the coin, head, or there may be tail. So there are two possibilities. A coin is tossed. Now what is the probability of occurring head? Probability of occurring head. Number of element in A upon number of element in S. Number of element in S is given 2. A coin is tossed only once. एक बार toss किया है. So there are possibility, only 2 possibility. A coin is tossed only once. What are the number of points occurring head? There are only one way. So 1 upon 2 is the possibility of occurring head. Similarly, occurrence of head as a possibility 1 by 2. The occurrence of tail will have the same possibility, that is 1 by 2. So here when a coin is tossed, these are the probabilities of occurring head and tail. A coin is tossed once. When the same coin is tossed 2 times, then the sample space will be changed, and according to the sample space, the events will also be changed. The events will depend on the condition, what condition is given. Now let us come towards the problem. Theoretical बात आपको बोर होगी, इसलिए हम कुछ problems ले लेंगे. 2 coins are tossed. Find the probability. What is the probability of getting 2 heads? तुरंत बता दो. 2 coins tossed. Probability of 2 heads. What is probability of 2 heads? So answer. What is probability of 2 heads? आपको टाइप वगैरह कुछ नहीं करना है. नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को आप कॉमा देख के भी लिख सकते हो. 2 कॉइन्स टॉस है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो गए 4.
तो डिनोमिनेटर में आपका 4 आएगा, 4 के पहले क्या नंबर आएगा? 2 हेड्स. व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑकरिंग 2 हेड्स? तो इधर लिख दो. समझो 2 हेड एक बार आया तो एक बार लिखो, 2 बार आया तो 2 बार लिखो, 3 बार आया तो 3 बार लिखो, 4 बार आया था ऐसे 4,4 लिखो. ये दूसरा 4 है ऐसे आपको अगर आंसर देना है. सी और व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, ऑकरिंग्स ऑफ 2 हेड्स? आंसर नहीं आया किसी का, आंसर दो. कहीं देख लो. ये 2 कॉइन्स समझ लो. When there are 2 coins, so the 2 coins have the possibility both are head. पहला हेड दूसरा टेल, पहला टेल दूसरा हेड, and both are tail. So these are the possibilities, 4 possibilities. So this is a sample space. N of S will be 4 possibilities. H H S T T H T T. N of S is 4. Now our question was 2 heads. So A is a event, 2 head. So which is the sample point? Which are the sample points? Only one sample point, HH. So N of A is 1. So probability of occurring 2 heads will be 1/4. अब इसमें क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? ये तो 2 हेड मतलब एग्जैक्टली 2 हेड. अब मेरा क्वेश्चन है एटलीस्ट 2 हेड. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड? मैं क्वेश्चन को फिर से चेंज करता हूँ. सैंपल स्पेस वही, मैं 3 क्वेश्चन लिखता हूँ इधर 2 से रिलेटेड. पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड. पहला अभी जो हुआ था वो एग्जैक्टली 2 हेड. सेकंड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2 हेड. एंड थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड. कोई है? पहला आंसर अपना 1/4 है, एग्जैक्टली 2 हेड. एग्जैक्टली 2 हेड एक बार आता है तो 1/4 इसका आंसर है, पहले का आंसर. इट्स आंसर इज 1/4. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 हेड? ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? एनीबॉडी? एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड का प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग द एटमोस्ट 2 हेड्स? कोई है? मैक्सिमम 2 हेड मतलब मिनिमम हेड नहीं होगा तो भी चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होंगे. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 हेड? कोई भी बता दे. एटलीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 हेड. 2 हेड, 2 हेड से आगे, 2 हेड से आगे नहीं है, इसलिए फिर से ये प्रोबेबिलिटी भी 1/4. सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 हेड? एनीबॉडी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 हेड? कोई नहीं है. एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 हेड मतलब 2 हेड, एक हेड, नो हेड मतलब ऑल सैंपल पॉइंट्स 4/4. इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1. एटमोस्ट 2 हेड. अब क्वेश्चन को चेंज करता हूँ. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड? अब तो आंसर आना चाहिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड? 1 हेड कितनी जगह है? 2 जगह. सो 2/4. अब चेंज करता हूँ. प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड चाहिए. व्हाट इज प्रोबेबल? एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड. इसमें एक हेड है नहीं? एक है क्या? नहीं. इसमें है एक, इसमें है एक. 2 चलेंगे, कम से कम एक है, एटलीस्ट 1 हेड.
एटलीस्ट वन मतलब 2 चलते हैं, 3 भी चलेंगे और भी चलेंगे, तो कम से कम एक हेड चाहिए। इसमें है, इसमें है, इसमें, सो प्रोबेबिलिटी 3/4। एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट वन हेड। अब और क्वेश्चन चेंज हुआ, एटमोस्ट वन हेड, एटमोस्ट वन हेड। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट वन एच? ज्यादा से ज्यादा एक हेड होगा, तो एक हेड होगा, ज्यादा एक से ज्यादा एक हेड मतलब उससे कम हेड, एक हेड 0 हेड, तो ये एक हेड और 0 हेड, सो 3/4 अगेन, एटमोस्ट 3 वन हेड का 3/4। ये देखो अंडरलाइन करके दिखा है, एटमोस्ट वन हेड का, एटलीस्ट वन हेड का भी 3/4 पॉजिटिव में, और एग्जैक्टली वन हेड का 2/4, सिमिलरली फॉर टेल्स आल्सो। So what is the probability of no head? Probability of no head. What is probability of no head? No head मतलब yes, yes, बोलो ना। ये बोलो, आवाज आ रही है, बोलो, बोलिए शुभम। सर हाँ मिस्टेक बोल। हो गया सर, क्या मिस्टेक सर, हैंड राइटिंग मिस्टेक से हो गया। क्या यार, तो भी ठीक है, ठीक है। हाँ हेलो जय। सर वो चैट आपको नहीं आ जा रहा सर। नहीं जा रहा? वो आस्था डिफेंस एकेडमी को जा रहा है उससे। अच्छा, वो सर के पास, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। बाकी ऐसा हो रहा है क्या? लेट मी चेक। अब आएगा अभी, अब आंसर दे सकते हो आप लोग। हाँ बराबर है, बराबर है, अभी आ रही है। चलो हम जाएंगे नो हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। नो हेड मतलब ओनली टेल्स, सो टी मतलब 1/4, बराबर है। आप लोगों ने आंसर दिया, वेरी गुड, वेरी नाइस। वही स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, इतने सारे स्टूडेंट हैं। यही यही यही, ये कंपटीशन है, लेकिन ट्राई ट्राई करो। यस 1/4। तो इसी प्रॉब्लम से फिर हम जाएंगे थ्री थ्री हेड्स, 3 कॉइन टॉस्ट। यस बराबर है, सही है, ऐसा ही करके दीजिए, जरूरी नहीं है आपको टाइप करने में टाइम लगेगा। 3 कॉइन टॉस्ट, अभी 3 कॉइन में हम क्वेश्चन चेंज करेंगे, पॉसिबिलिटीज होंगे, हेड हेड हेड, ऑल आर हेड, 3 कॉइन्स है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज विल बी हेड 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 हेड, नंतर 2 हेड और 1 टेल, फिर ये टेल इधर आएगा और फिर ऐसा आएगा, ये 4, फिर टेल वाले 2 टेल 1 हेड, टेल हेड टेल, and last वाला टेल टेल टेल। These are 8 possibilities of 3 coins are tossed। इसी तरह से लिखते जाओ, सैंपल स्पेस यस 8 possibilities। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज डिपेंड ऑन, एक में कितने पॉसिबिलिटी रहते हैं? 2। एक में 2 पॉसिबिलिटीज है, 2। कितनी बार काउंट किया? तो 3 बार, तो 2⁻3। एक कॉइन को 2 बार अगर टॉस करते हैं तो 2⁻2। एक कॉइन को एक बार टॉस करते हो तो 2⁻1, बिकॉज इट हैज ओनली 2 पॉसिबिलिटीज। सो कितनी बार उसको ऊपर लिखना है? 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3।
अब लोग बोलेंगे कॉइन को टॉस ही नहीं किया था, कितने पॉसिबिलिटी, 2^01, कैसे हो गए मुझे भी मालूम नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। रुको, अभी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आया तो डाउट कैसे आएगा। अगर कॉस्ट कॉइन को 3 बार टॉस किया तो 2^3 पॉसिबिलिटी 8। कॉइन को 2 बार टॉस किया तो 2^2 4 पॉसिबिलिटी। कॉइन को 1 बार टॉस किया तो 2^1 2 पॉसिबिलिटीज। कॉइन को टॉस ही नहीं किया, ऐसे कुछ सवाल रहते, मुझे भी मालूम नहीं क्या हो। 2^01 पॉसिबिलिटी कैसे होगी, कॉइन को टॉस ही नहीं किया। चलो इधर जाएंगे हम, सैंपल स्पेसियस, इसमें 8 पॉसिबिलिटी है। मुझे और कुछ आपको बातें बतानी है। द इम्पोर्टेंट थिंग, वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट, एटमोस्ट, सबको सब आता है, बट मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड। पहला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड तो आपको पता है, एग्जैक्टली 2 हेड वाला, एग्जैक्टली 2 हेड 3/8 है। एग्जैक्टली 2 हेड 2 टेल भी 3/8 है। नो हेड भी 1/8 है। नो टेल भी 1/8 है। अब मेरा है एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड। कम से कम 2 हेड, 4 पॉसिबिलिटीज। कम से कम 2 मतलब 3 भी हेड चलेंगे, 1 2 3 4, 4 पॉसिबिलिटी, 4/8, दैट इज 1/2 इज योर प्रोबेबिलिटी। एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड मतलब 3 हेड भी चलेंगे। 1/2, यस, सोच लो, 1/4 नहीं, एटलीस्ट 2 हेड, 1/2। हाँ, यस यस यस, एटलीस्ट 2, कम से कम 2, तो कम से कम 2 मतलब 1 2 3 4, 4/8, 1/2। एटलीस्ट 2 के बाद मैं इसको बदलता हूं, एग्जैक्टली 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2। अब तो आंसर तुरंत आएगा, एग्जैक्टली 2 हेड, यस, 3/8, 3/8, 1 2 3/8, 2/8 नहीं, 3/8, 3/8, 1 2 3/8। अच्छा, वेरी गुड। अब क्वेश्चन बदलता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड। मतलब 7/9 नहीं, 7/8 ही रहेगा, चलता है, लेकिन 7 आपका आंसर सही था। 7/8, एटमोस्ट 2। हाँ, अरे एटमोस्ट 2 मतलब ज्यादा से ज्यादा 2, सिर्फ 3 नहीं चलेंगे, बाकी सब, मतलब 7/8। जीरो भी चलता है, ज्यादा से ज्यादा 2 मतलब 1, मतलब 0, 0 वाला ए, 1 वाले ए और 2 वाले ए, 7/8। एटलीस्ट, एटमोस्ट, एग्जैक्टली। मेरे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, एटलीस्ट एटमोस्ट आपको समझ में आया है। एक इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 की वैल्यू जो है वो किसका कॉम्प्लीमेंट रहती है, एटलीस्ट 2 की वैल्यू इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट। कॉम्प्लीमेंट में अगर लिखा जाए तो देखो समझ लो, एटलीस्ट 2, कम से कम 2, इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 2।
एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट रहते हैं, एटलीस्ट टू एंड लेस देन टू, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। ये फॉर्मूला बन जाएगा, अभी आपके पास एक फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट टू किसी भी जगह है, इसका कॉम्प्लीमेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन टू। ज्यादा से ज्यादा दो, उसका उल्टा दो से कम, नहीं मतलब ये दो से कम, उसका उल्टा दो से ज्यादा। ये दो उसमें आता है, दो इसमें नहीं आता, मोर देन टू। एटलीस्ट टू, कम से कम दो, मतलब दो से शुरुआत होगी, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, लेस देन टू। मोर एटमोस्ट टू वाला नहीं आता, लेकिन इसमें ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, एटमोस्ट एंड एटलीस्ट अलग अलग है। सीयर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, probability of at least 2 is 1 minus less than 2, probability of at most 2 is 1 minus more than 2. So these are the formulae related with at least and at most. चलिए कुछ क्वेश्चन की ओर, बोर नहीं होगा, थ्योरेटिकल चीजें हमें बोर करती है बहुत। एक ही क्वेश्चन लिया हमने, बहुत सही क्वेश्चन है। अ बॉक्स कंटेन्स, आई थिंक यही क्वेश्चन हमें लास्ट तक चलेगा अभी। अ बॉक्स कंटेन्स, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। Some black and 30 white ball, 30 white and some black marbles, 30 white है और कुछ ब्लैक मार्बल्स है एक बॉक्स में, छोटे छोटे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग, a black ball is, a black marble is, एक ब्लैक मार्बल की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 2/5 ऑफ व्हाइट, 2/5 ऑफ व्हाइट, ये कंडीशन है। एक बॉक्स में 30 व्हाइट है और सम ब्लैक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक इज 2/5 ऑफ व्हाइट। ऐसी इंफॉर्मेशन दी है। देन सादा सीधा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, मार्बल्स, नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल्स विल बी व्हाट, 12। अरे बाप रे, पहले से पता है, पहले से पता था। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है, नहीं, वेरी गुड। सो चलो, बॉक्स में 30 व्हाइट है और सम ब्लैक मार्बल है। सर्च इन गूगल, गूगल में मत डालो ये क्वेश्चन, अभी खुद सॉल्व करो। ट्वेल्व आंसर आया है। वाह वाह वाह, बहुत सही ट्रिक है। बहुत सही ट्रिक है, 2/5। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, मानना पड़ेगा। पढ़ाई करो, जुड़े रहिए, पढ़ाई करते रहो। प्रोसेस देखेंगे कंप्लीट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इज 2/5 ऑफ व्हाइट। बहुत सही ट्रिक मिली है आज। प्रोबेबिलिटी ऑफ
Black is ओम, ऋषिकेश, अक्षय और कुछ है। आंसर तो बहुत सारे लोगों ने दिया है। साहिल, पहले आंसर दिया था साहिल, पहला आंसर साहिल ने दिया था 12। ओम, वेरी गुड। चलो, ये कुछ स्टूडेंट सेम सेम वही स्टूडेंट आ रहे हैं, बाकी स्टूडेंट कुछ भी नहीं पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वेरी गुड, टोटल हो गए x+13, बहुत सही। ब्लैक हो गए x, तो टोटल हो गए x+13। तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी हुई x/x+30। ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इज x/x+30, और व्हाइट की हो गई 30/x+30। अब ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कैसे बताइए? 2/5 ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट। सो मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी है ये इसका 2/5 है, तो तुरंत ये कट जाता है, तो बराबर है। आप लोगों ने बताया x = 2/5 of 30। तो जो रिलेशन प्रोबेबिलिटी में है वही रिलेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स में होता है। ये ट्रिक है आज की। प्रोबेबिलिटी में क्या रिलेशन था? एक दूसरे का 2/5 था, तो वही रिलेशन एक दूसरे के नंबर में होगा। याद रखो कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में। इसलिए 12। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे हैं, सब अच्छे, बाकी लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। पार्टिसिपेट कीजिए, कुछ भी आंसर देते जाइए, गलत भी हो ट्राई करके दीजिए, कुछ भी आएगा आप दीजिए तो सही, हम उसको सही करेंगे और आपको भी सही करेंगे। हाँ हाँ, यस यस, मुझे मालूम है, आपने पहले बताया। अक्षय, गुड, वेरी गुड, नाइस। अक्षय ने बताया था ऐसा। तो ये सिंपल है, तो ये आता कैसे? मैं सिर्फ उसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ। एवरीथिंग इज लॉजिक। x/x+30 is 2/5 of 30/x+30। तो ये डिनोमिनेटर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाते, तो ऑटोमेटिकली 2/5 द नंबर्स। अगर ये हाफ होता तो ½ होता, ये अगर 3/5 होता तो 3/30 होता है। यही लॉजिक है, बट हमें ये देखना है ये कैसा है। कंडीशन ऐसा था डायरेक्ट, इसका प्रोबेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ इट दिया था। ब्लैक मार्बल को हमें फाइंड करना था और उसके नंबर नहीं मालूम। व्हाइट मार्बल के नंबर मालूम है, और इसका प्रोबेबिलिटी व्हाइट नंबर में दिया है। व्हाइट के प्रोबेबिलिटी का 2/5 है। अगर उल्टा दिया होता तो हमें थोड़ा सा अलग सोचना पड़ता है। देखो, अगर यही प्रोबेबिलिटी हमें ऐसा दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट इज हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, तो कैसे करोगे? ऐसा दिया है तो ये 2 इधर आएगा। 2 into प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, मतलब 32 जार 60, तो इसकी वैल्यू 60 होगी। सीधा साधा सवाल। ये ऐसा चेंज करना पड़ेगा, बस इतना ही याद रखो। नहीं तो आप उधर ही 1/2 करेंगे तो 1/15 आंसर आएगा आपका। चेक करो ये मेरा लॉजिक। चलो और कुछ क्वेश्चन के साथ, टाइम कम है। किसी को कोई डाउट? ओके, कैसे लगे आज के क्वेश्चन? आज सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे। मीन मीडियन मोड के क्वेश्चंस पहले सेशन के। प्रोबेबिलिटी तो थे, प्रोबेबिलिटी तो अभी और क्वेश्चन आने वाले, बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले। हाँ, कार्ड्स कार्ड्स और कुछ नंबर्स और कुछ एक्स्ट्रा चीजें कल के लेक्चर में वो सब कंप्लीट हो जाएगा। जुड़े रहिए। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन रहेंगे। हाँ, स्टेप डेविएशन होगा, शॉर्टकट मेथड होगा, मीन और मीडियन, कुछ और तरह से। अगर
सिंपल वे से फाइंड करें तो उस मेथड को भी हम बताएंगे। बोर्ड के लिए मैंने एक मेथड निकाला है। सो हाँ, योर कमेंट ऑलवेज नाइस। yes 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 very good। ऑल क्वेश्चंस आर ट्रिकी। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, हमें ट्रिक यूज करनी होती है, ट्रिक यूज करनी होती है। क्वेश्चन सिंपल रहते हैं बट हमें उस समय याद नहीं आता है। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है, 5 रेड है और सम, यस यस यूज कर सकते हो, कर सकते हो। उससे आपका ब्रेन पावर बढ़ेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। बट सिलेबस से जाइए, सिलेबस के पॉइंट्स को देख के जाइए। आप जो बुक यूज कर रहे हैं उसमें सिलेबस के पॉइंट पे जाइए। 5 रेड है, हाँ यस 5 रेड है और सम ब्लू है, यही क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इज double of probability of red, probability of blue is double the probability of red, then what is the value of blue? यही क्वेश्चन है, ऐसा ही है, सेम 5 2s are 10। हाँ यही सेम क्वेश्चन है, लेंथी नहीं जाना है। 10 ही ना, 5 रेड है तो इसका प्रोबेबिलिटी हुआ 5 अपॉन x प्लस 5।